Hello student, in this video I will cover the buyback of shares. First of all we will try to understand the meaning of buyback of share. Then we will learn the objective behind the buyback of share. Then legal provision of buyback of share. And in the last part of the video we will going to learn the accounting treatment for the buyback of share. Let's start. First of all we should understand what is the meaning of a buyback of share. The term buyback means the buying back by a company of its own share or other securities from the holder. It is also known as share or stock buyback. In simple words, the company will try to buy back their own share which is previously issued to the shareholders. Okay, so there are some objectives behind the buyback of share. We will learn one by one. So objectives. The first objective to increase the intrinsic value of the share. So what is the intrinsic value of the share? Intrinsic value of share means the real worth of company share and not merely its face value. To determine the intrinsic value, we take net asset method because the value of share is reflected in the form of asset, or you can say outside liability. Now you may have a question of, like, in simple word we will try to understand the intrinsic value. We everyone know the face value of the share. Face value matlab the company issue the 10 face value of rupees 10 share. Sorry, face value of rupees 10 for one share. So that's the face value of the rupees. और उसके बाद एक होता है market value on which the share is trading in the share market. And similarly we have intrinsic value. Intrinsic value means the actual value of the share, or in short the actual value of the shareholders holding in that particular company. Suppose company's business has a worth of rupees 1 crore and equity share has a number of equity share is 1 lakh. So the 1 crore business is divided among the that 1 lakh इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कंपनी की एक्चुअल ओनरशिप कितनी आएगी. एक्चुअल ओनरशिप से मतलब है टोटल असेट की वैल्यू को टोटल लायबिलिटी से माइनस करने के बाद जो नेट वर्थ बचती है वो बिजनेस की वैल्यूएशन, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. तो उसमें शेयर होल्डर का कितना पार्ट आता है. भले ही शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज हो या 100 रुपीज हो, बट इंट्रेंसिक वैल्यू almost every time it's much more than the face value. So that is the intrinsic value. The next objective is to increase the earning per share. अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर क्या होता है? Whenever company earn a profit in that particular year, that profit to be distributed among the existing equity shareholder. Okay, ठीक है. सो ईपीएस का फॉर्मूला हमने सीखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट स्टेट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सपोज कंपनी ने करंट ईयर में 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया. ओके, एंड कंपनी हैज अ 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर. सो दैट 10 लाख रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, बट अगर कंपनी नेक्स्ट ईयर में बाय बैक कर लेती है आउट ऑफ 1 लाख, सपोज 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा देके उनसे वो शेयर ले लेती है, इनडायरेक्टली उनकी शेयर होल्डरशिप कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, शेयर होल्डर से शेयर ले लेंगे, 50,000 शेयर खरीद लेंगे कंपनी वापस और 50,000 शेयर होल्डर को उनका पैसा दे देंगे. ठीक है, वो वैल्यूएशन के हिसाब से हम समझेंगे आगे कितना पैसा देते हैं. तो अब कंपनी के बाद नेक्स्ट ईयर में कितने शेयर होल्डर बचेंगे? 50,000. ठीक है, और अगले साल सपोज कंपनी ने सेम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी रखी और अगेन 10 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न किया इन दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में. तो जो 10 लाख प्रीवियस ईयर में 1 लाख शेयर होल्डर में बटा था वो नेक्स्ट ईयर में कितने में बटेगा? 50,000 में. सो इनडायरेक्टली अर्निंग पर शेयर बढ़ा ना. सो दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव टू रिड्यूस द एक्सेस शेयर कैपिटल. आज आप बोलोगे चलो एक्सेस शेयर कैपिटल क्या होता है. कई बार क्या होता है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर, इट्स नॉट अ प्रॉपर शेप. सो कंपनी ट्राई टू मेक इन अ प्रॉपर शेप. तो जो भी एक्सेस शेयर कैपिटल मार्केट में इशू हो रखी है एंड कंपनी हैज सरप्लस फंड, जैसे अपना ऑब्जेक्टिव नंबर 4 भी बोल रहा है टू यूज सरप्लस कैश लाइंग आइडल इन द बिस. लाइंग आइडल इन कैश मतलब देयर इज नो यूज ऑफ कैश. कंपनी के पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है
and company has no idea how to use that for cash. So that cash can be used for the buyback of share, ताकि वो कैश भी यूटिलाइज हो जाए और जो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है शेयर कैपिटल उसको भी प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आ जाए. Next said to increase the shareholding of the promoters. As we know, the promoters are who that they are the actual owner of the company, or you can say those person who has started the business. ठीक है, promoters. तो promoters के पास क्या होता है, initial time से ही day one से उनके पास कुछ शेयर होते हैं, and they want to increase the shareholding. मतलब कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, ओनरशिप. तो उसका एक तरीका है कि वो कंपनी में से कंपनी का पैसा यूज करते हुए, अब देखो शेयर होल्डिंग बढ़ाने के दो तरीके हैं. या तो वो और ज्यादा शेयर कंपनी की खरीद ले अपने पैसे से, तो कंपनी में शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी. दूसरा उनका तरीका क्या होता है कि दे यूज द मनी ऑफ द कंपनी फॉर द बायबैक. तो बायबैक से क्या हो जाए, उनका नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हो रहा, बट कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर गिर रहे हैं. सपोज कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर होल्डर है, आउट ऑफ विच 50,000 शेयर्स. तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं. तो शेयर होल्डिंग का मैंने बोला था दो तरीके होते हैं. पहला, वो अपने पैसा खर्च करके कंपनी के शेयर खरीद ले सो दे कैन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. और सेकंड, दे हैव अ ऑप्शन फॉर बायबैक. बाय वे ऑफ बायबैक दे कैन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग. हाउ? सपोज कंपनी हैज अ 1 lakh शेयर, out of which 50,000 belong to the promoters. So indirectly they have a 50% ownership in that particular company and then want to increase their shareholding. So what they will do? They will go for buyback. Suppose 20,000 share उन्होंने buyback के through खरीद लिए. So now the company's total number of share will be reduced by 20,000 and now at present the company has only 80,000. उस 80,000 में से 50,000 कितना किनके पास है? प्रोमोटर्स के पास. तो indirectly उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ी ना कंपनी में. Then next we have to prevent the takeover attempts of competitors. Suppose किसी कंपनी के पास कोई कंपटीशन में खड़ा है and that competitor want to take over that particular company अपने कंपटीशन को कम करने के लिए, और उसके शेयर मार्केट में अवेलेबल है. सो हमें सबको पता है अगर कंपनी की ऑनरशिप चाहिए तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू buy more and more share so you can become the owner of that particular company. सेम द कंप्यूटर वे भी वैसे ही करते हैं. तो कंपटीटर टेक ओवर करने के लिए उनके शेयर खरीदे उससे पहले कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है, और जिससे क्या हो जाता है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर कम हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कंपनी टेक ओवर अटेम्प्ट को क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है कि कोई कंपटीटर उसके शेयर को खरीद नहीं पाए. जो एक्सेस शेयर मार्केट में अवेलेबल है उनको कंपनी खुद ही पहले खरीद लेगी. नेक्स्ट है टू इफेक्ट फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कंपनी को बैलेंस करना. बैलेंस मींस इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स, प्रॉपर्ली उनको अरेंज करना. ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ शेयर. Students, now we will learn the legal provisions which is required for to process the buyback. ठीक है, so क्या है legal provision? Let's try to understand one by one. Number one is sources of fund. Sources of fund means whenever the company think about the buyback, the company should have a fund available to that fund should be utilized to for buyback. तो वो sources of fund आ जाएगा कि कहाँ से हम पैसों का अरेंजमेंट करेंगे. ओके, उसमें हमारे पास है फ्री रिजर्व्स. Free reserve means the company has accumulated profit in different heads like profit and loss, general reserve, etc. Similarly, company can use the securities premium account. Securities premium हम सबको पता है. Whenever company issue the securities over and above the face value, the company will get the extra amount. Suppose the company has a face value of rupees 10 rupees per share, and company is issuing that particular share for 15 rupees. So company is getting 5 rupees extra on that face value. So that 5 rupees will be credited to the securities premium account. तो वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो एक्स्ट्रा पैसा आता रहता है उस अमाउंट को द कंपनी कैन यूज फॉर दैट बायबैक पर्पस. Then third option we have a proceed of any share or the specified security. Suppose company want to buy back the equity shares. So to arrange for the arrangement of the cash, the company can issue the debentures or preference shares.
So by issuance of debenture or preferential, company can collect the money that can be used for the buyback of share. So that's the sources of fund. Second one is the authorization. Yes, student authorization is very important, because without authorization company cannot go for buyback. What kind of authorization? Number one, the article of association. हमें सबको पता है कंपनी दो मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, अपने पास रखती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर द कंपनी शुड मेंशन और शुड हैव अ क्लॉज अबाउट द बायबैक. Suppose company doesn't make any clause in that article of association. In that case, the company first introduce a clause, or you can say make a clause in the article of association. Then only company can go for buyback of share. अगर वो clause नहीं है तो कंपनी बायबैक में नहीं जा पाएगी. तो कंपनी को बायबैक करने के लिए पहले उस क्लॉज को होना चाहिए. अगर नहीं है तो वो क्लॉज को ऐड करेगी. उसका जो प्रोसीजर है क्लॉज को कैसे ऐड करते हैं वो फॉलो करके आर्टिकल एसोसिएशन में उसको क्लॉज को इंक्लूड करना है. देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस माय फ्रेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. कितना? उसके लिए भी एक लिमिट है. 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी. सो टोटल फ्री रिजर्व का मतलब अगेन मैंने बोला वो accumulated प्रॉफिट विच इज लेइंग इन डिफरेंट हेड्स लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट इन लॉस, वी हैव अ लिस्ट. ठीक है. सो उसका accumulated रिजर्व, फ्री रिजर्व प्लस इक्विटी शेयर होल्डर दोनों को मिला के उसका 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? अप्रूवल दे सकते हैं. सपोज हमारे पास कंपनी के पास फ्री रिजर्व है 50 lakhs और 1 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल. सो 1 करोड़ प्लस 50 तो 1.5 करोड़ का 10%, मतलब कितना? जो 1.5 करोड़ का 10% निकालेंगे मतलब 15 लाख रुपए. तो 15 लाख रुपए तक के शेयर को बायबैक करवा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कंपनी का टोटल मिला के 10% निकालना है. एंड उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे इन द बोर्ड मीटिंग. Then shareholders. Yes, if company want to buy back more than 10%, in that case company needs approval from shareholders. And the shareholder also has a limit, upper limit 25% of total paid up capital and reserve and supply, like in the case of board of director. So shareholder भी एक upper limit है up to 25%. Up to 25% the shareholder can give the permission for the buyback. और उसके लिए अगेन शेयर होल्डर की मीटिंग होगी और उसके अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा. थर्ड, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बीइंग बॉट बैक आर टू बी फुल्ली पेड अप. यस डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप का मतलब है सपोज कंपनी शेयर फेस वैल्यू इज ₹100 पर शेयर, and out of which company has received 80 rupees from the equity shareholders. It means 20 rupees still unpaid, that to be paid by the shareholders. And in this case the company cannot go for buyback until unless the company is not received full payment from the equity shareholder. So उसके लिए भी ट्रीटमेंट है हमारे पास. कंपनी क्या कर सकती है? कॉल कर सकती है that 20 rupees, and after receiving the 20 rupees company can go for buyback. ठीक है. सो रिमेंबर वन थिंग, पार्टली पेड अप शेयर का कभी भी बायबैक नहीं होता है. until unless the share is not fully paid up, the company cannot go for buyback. Post buyback debt equity ratio not to exceed 2:1. and debt equity ratio का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास जितना शेयर कैपिटल है उसका आधा बोरोड फंड होना चाहिए, मतलब लोन फंड. सपोज कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर कैपिटल है तो 50 lakhs का ही वो लोन ले सकती है, तभी रेशियो क्या बन के आएगा? 2:1 का रेशियो होना चाहिए. ये एक तरह से गुड इंडिकेशन देता है अदर इन्वेस्टर्स को कि कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ वो मैक्सिमम पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का. ठीक है. और 2:1 का मतलब ये है कि अगर 1 रुपया बाहर मार्केट पे लोन है तो उसके सामने 2 रुपए शेयर कैपिटल है. ठीक है. सो दिस रेशियो गिव द कॉन्फिडेंस टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एज वेल एज दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, मतलब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. टाइम गैप बिटवीन द टू बायबैक. यस,
No offer of buyback under section shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of the closure of the proceeding offer of buyback. So buyback, दो buyback के बीच में एटलीस्ट 1 year का गैप होना चाहिए। और कौन सी डेट पकड़नी है? जहां पे द डेट ऑन विच द बायबैक प्रोसीजर इज कंप्लीटेड फुल्ली। प्रोसीजर मतलब स्टार्टिंग नोटिस से लेके रेजोल्यूशन पास होने से लेके पेमेंट तक, अगर सारे शेयर होल्डर को जो बायबैक कर रहे हैं उनके शेयर होल्डर को पैसा मिल चुका है, तो जिस दिन पेमेंट मिला है जहां पे बायबैक का प्रोसीजर क्लोज होता है, उस डेट से लेके अगले बायबैक के रेजोल्यूशन के बीच में एटलीस्ट 1 year का गैप होना चाहिए। Now student, we are moving further to learn the accounting treatment, ठीक है, that we call accounting procedures. Let's start. Now student, we will try to learn about the sources of capital under the accounting treatment. So we already learned in the legal provisions. The company first of all find out the sources of capital. So sources of capital. So for the buyback of share, we have a two option to create a source for buyback of share. Number one is creation of CRR. CRR means capital redemption reserve. It's a one kind of reserve which is created for the purpose of buyback of share, and that CRR can be used in future for issue of bonus share. Okay, and remember friends, CRR is only created by using the only free reserve. Free reserve का मतलब क्या होता है? Free reserve means द कंपनी क्या, फ्री रिजर्व का मतलब ये होता है कि वो रिजर्व दैट कैन बी यूज एज पर द कंपनीज विश और रिक्वायरमेंट। देर मतलब वहां पे कोई कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। ऐसे रिजर्व जिसपे कोई कंडीशन नहीं, उन रिजर्व्स को यूज करते कंपनी चाहे तो बोनस डिक्लेयर, सॉरी क्या कहते हैं, ये बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, समझ में आया? सो दैट कॉल्ड फ्री रिजर्व। सेकेंड है कंपनी पैसों का अरेंजमेंट कर सकती है बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये याद रखना, जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी दोनों में से एक ऑप्शन ले सकती है या दोनों के कॉम्बिनेशन से उतना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। नाउ वी विल ट्राई टू लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फॉर द बायबैक प्रोसेस। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ अर्लियर स्पेसिफिक इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सपोज कंपनी ने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मुझे सोर्सेस ऑफ कैपिटल करना है प्रेफरेंस शेयर से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वी नो दैट बैंक इज अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, सो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड है सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। यस, कंपनी आल्सो कैन अरेंज द फंड बाय सेलिंग द असेट्स। असेट्स क्या होता है? हमारा डेबिट बैलेंस होता है असेट्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग एज अ डेबिट बैलेंस। अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो इन रिटर्न वी आर गेटिंग द मनी, सो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक, अगेन रियल अकाउंट बोथ। असेट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में हम बैंक भी इंक्लूड है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में क्या जा रहा है? असेट जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्या जा रहा है? असेट जा रहा है, सो टू असेट्स अकाउंट। यस, in that particular transaction if company is earning loss, so loss के लिए हमें क्या आ जाता है? नॉमिनल अकाउंट आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। इफ लॉ, देखो मैंने कलर क्लियर कर रखा है, इफ लॉ अगर लॉस है तो डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट अर्न हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सो सिमिलरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ प्रॉफिट। सो ये याद रखना फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक साइड में आएगा या तो डेबिट में अगर लॉस हुआ तो, और अगर प्रॉफिट हुआ उस सेल ऑफ असेट से तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी, आई वुड से ड्यू एंट्री, कि कितना अमाउंट पेएबल है फॉर द बायबैक। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? एक हाथ से पैसा दे रहे हैं शेयर होल्डर से, बदले में उनके शेयर कैंसिल कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम उनके शेयर खरीद रहे हैं, और पैसा किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। सो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम वापस ले रहे हैं।
और अगर उस पर हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, सपोज 10 रुपीज का फेस वैल्यू शेयर, बट वी आर पेइंग मोर टू द इक्विटी शेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द बायबैक पर्पज, दैट कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या प्रीमियम ऑन बायबैक. So that's the extra money they were paying. So it's a kind of loss, or you can say expenses on the buyback. So that's why we are treating as debit side, क्योंकि हमारा nominal account क्या कहता है, all type of expenses and losses should be debited. So premium on buyback of share debit, and both the face value plus premium किसको पे करेंगे, to equity shareholder. So to equity shareholder account. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन. इज एज वी हैव लर्न अर्लियर कि सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है, और किसको यूज करते हुए, फ्री रिजर्व्स को. ठीक है, सो फ्री रिजर्व कहाँ बैठे होते हैं, लायबिलिटी साइड में. लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस. अब हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यूटिलाइज करेंगे तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू गिव द डेबिट इफेक्ट बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग और वी आर यूटिलाइजिंग दैट फ्री रिजर्व. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. सो सपोज हमें 10 लाख की जरूरत है और प्रॉफिट एंड लॉस में 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख हम यूटिलाइज कर लेंगे, बाकी बचा हुआ 2 लाख अगर जनरल रिजर्व है हमारे पास, तो उससे यूज करें. फिर भी कम पड़ रहा है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम लाइक वी विल यूज 1 by 1. ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से. देन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो हमारा थर्ड वाला क्या थी, ड्यू एंट्री. अब हम नाउ वी आर मेकिंग द पेमेंट. सो पेमेंट के लिए हमारा क्या है, अगेन वी विल यूज द बैंक. सो बैंक हमारा रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट, पर्सन है ना, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, पैसा मिल रहा है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है हमारा कंपनी के हाथ से, सो टू कैश बैंक अकाउंट. एंड लास्ट एंट्री, प्रीमियम ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड और राइटन ऑफ. सो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने किया ऊपर प्रीमियम यूज किया है उसको हम राइट ऑफ करेंगे. तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले थियरी में पढ़ाया था कि कंपनी अगर इश्यू के टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करती है तो उस वो अमाउंट हम किस में ले जाके रखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में. सिमिलरली अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं फॉर बायबैक पर्पज, तो वो अमाउंट हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे उस अकाउंट से जहां पे हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लेके रखा हुआ है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम. अगेन ये रिजर्व है, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा. अगर उसमें अमाउंट कम पड़ जाता है, अगेन वी विल यूज दी फ्री रिजर्व. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट. So thank you student, that's enough for this video. I have covered in this video, first of all we will learn about the meaning, then we have learned objective for buyback, then legal provision related to buyback of share, and last part is accounting treatment of buyback. ठीक है, थैंक यू वंस अगेन. मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ. थैंक यू स्टूडेंट, बाय.